And on the occasion of Independence Day, Mirror now salutes Corona warriors who have been selflessly sacrificing, making immense sacrifices during this pandemic in the battle against the pandemic. Now, as the coronavirus outbreak accelerates nationwide, India's all-female army of accredited social health activists, also known as ASHA workers, have played a pivotal role in tracking down high-risk contacts of COVID-19 patients across slums, narrow lanes and rural parts of the country. This is the story of Rekha, who has been relentlessly carrying out surveillance in Delhi, braving the scorching summer until now. As the nation went into a shutdown, 46-year-old Rekha, an ASHA worker in South Delhi, stepped out every day. Her job was to carry out door-to-door surveillance to find COVID-infected citizens and to spread awareness. और अब कोविड का जो ये चला हुआ है, उसमें तो कभी भी फ़ोन कर देती हैं डॉक्टर एएनएम कि भाई ये पेशेंट का पता करो, ये पॉजिटिव निकला है। फिर उसके आसपास 50 घरों का सर्वे के लिए बोलते हैं कि 50 घर का सर्वे करवाओ, तो फिर हम सर्वे भी करते हैं। बहुत ही मुश्किल था कि मतलब हमें कुछ चीज़ें प्रोवाइड नहीं करते थे, ग्लव्स नहीं, मास्क नहीं, वो तो हम ज़बरदस्ती मांगते थे कि हमें वहाँ एरिया में भेजा जा रहा है तो हमें कम से कम हमारी सुरक्षा के लिए कुछ तो दो। तब बोलते थे कि आ ही नहीं रहा, पीछे से सामान नहीं आ रहा है, तो फिर हम बोलते थे हम नहीं जाएंगे। तब एक दो बार उन्होंने ग्लव्स वगैरह दिया और ये मास्क वगैरह भी दिया। Rekha has been working as ASHA worker since 2008. She has 420 houses under her jurisdiction and she visits 20 to 30 homes every day on foot, armed with a register, pen, a mask and gloves. In managing the COVID crisis, the door-to-door screening in the containment zone and also the other areas, the work of ASHA workers becomes very, very important. And currently, we are in the by-lanes of Neb Sarai, where you can see Rekha ji interacting with the people who are there staying in those by-lanes in the Neb Sarai area, currently inquiring if there is anyone who is suffering from influenza-like illness or severe acute respiratory infection. These data are then given to the higher authorities, which gets collated, and then the RT-PCR or the antigen test evaluation is done. This is where the role of ASHA worker becomes very important, forming them or making them as the backbone of the entire system of surveillance in the country. The scorching heat hasn't slowed Rekha down. But what does become a challenge for her is resistance from the community. People often hide information owing to the stigma. और तेरी बेटी को टाइफाइड का टीका लगा था? नहीं लगा। अब टीका आ गया डिस्पेंसरी में, वो तो बुधवार के दिन या शुक्रवार के दिन आप आके लगवा लेना। जो पॉजिटिव होते हैं वो जल्दी से बता के खुश नहीं होते कि भाई हम पॉजिटिव हो गए, वो भी छुपाते हैं और आस पड़ोस का जो भी है वो भी चेंज हो जाता है। वो आपस में ही मतलब ये सोचते हैं कि पता नहीं क्या हो गया इनको, आपस में ही आमने सामने भी घर होंगे तब भी हेल्प नहीं करते हैं। तो बीमारी तो फैल ही रही है तो सबको पता है, लेकिन ये कि छुपाते भी हैं। तो हम लोग यही बताते हैं कि छुपाओ मत, जितना हो सके एक तो टेस्ट कराओ, टेस्ट करा के अपना इलाज कराओ। तो ये ऐसी छुपाने वाली तो नहीं है बीमारी, लेकिन लोग बाग करते हैं और भेदभाव भी करते हैं। Rekha faced the stigma not just while doing her job, but also when she and her family got infected by COVID. सोच भी नहीं सकते थे कि भैया, मैं सोच सकती थी कि मैं हो सकती हूँ पॉजिटिव, क्योंकि मैं तो कंटेन जोन में भी जाती थी और पॉजिटिव जो केस निकल जाते थे उनके घर के बाहर हम पोस्टर लगा के आते थे, हालचाल भी पूछ के आते थे।
लेकिन ये नहीं पता था कि हमारी फैमिली में और लोग भी पॉजिटिव हो सकते हैं। मैंने इतनी मतलब सुविधा अपनाई, भाई सैनिटाइज भी करना, हैंड वॉश भी आते ही, ग्लव्स वगैरह भी पहनती थी, मास्क भी, और चुन्नी से अपना फेस कवर भी करके रखती थी कि भी बच्चों को कोई वो ना दिक्कत ना हो। लेकिन फिर भी हो गया। तो बाहर से ही जैसे कोई भी निकलता था तो इतनी अजीब तरीके से देख के जाते थे और मतलब अच्छा भी नहीं लगता था। मेरी मदर का कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा ही प्रेशर बढ़ गया काम का। पहले इतना नहीं था जितना आज हो गया है। पहले उनके पास इतना टाइम था कि हमसे पूछ सकती थी आराम से कि जो हमारा इंटरेक्शन होता है, लेकिन आज का टाइम ऐसा हो गया है कि उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो हमारे से इंटरेक्शन की कोई भी बात कर सके टोटली। उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा भी कुछ होगा कि भाई कोरोना टाइप ये बीमारी कोई आएगी ऐसी। अब इसी चक्कर में इतना सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ गया है, सारा कुछ घर में नहीं ढंग से मिल सकते, बैठ सकते, बात कर सकते। जिम्मेवारी है तो उसमें वो तो उनको करना ही पड़ेगा, जिम्मेवारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसमें कर रहे हैं वो। बस यही चीज़ है कि हमें भी फिर उनका साथ ही देना है एक तरीके से। अरे बेटा मम्मा को भेजो बाहर। Despite these challenges, ASHA workers haven't stopped. Yet they only get an honorarium ranging from Rs 2,000 to 4,000 on an average. Many like Rekha are forced to make out-of-pocket expenses to secure protective gear to continue with their duties. दिक्कत की बात तो है ही कि भी इंसेंटिव है, कोई सैलरी नहीं है और वो भी कई कई महीने में मिलता है। और अब कोविड में जब से लगे हैं तो पॉजिटिव भी हो गई आशा काम के दौरान, और ये कि सैलरी भी नहीं मिलती है और इतने कम इंसेंटिव है कि आशा का घर चलना बहुत मुश्किल है। Rekha and her family have gone the extra mile in this COVID battle. Rekha is a frontline COVID warrior, a crucial link in tracing and isolating infected people. As we salute her hard work, we also ask, will the government listen to her appeal? With Sanjeev Chetri and Ayushman Kumar, Gauri Singh for Mirror Now.